Jai Jinendra, Namaste and Pranam to everyone present here. I welcome you all in the 205th session of Jain Talks, where we will discuss the subject Sadhana through the power of soul, Saraswati Sadhana. I, Dr. Priyadarshini Jain, a mother and a laparoscopic surgeon from Kolhapur, on a lighter note, also the daughter of Mr. Ramesh Shah, who is the founder of Jain Foundation, who is present here today. It is an honor and privilege that to present today's topic, we have a distinguished panel of esteemed members joining us. I would like to introduce them and invite them to present the topic of Saraswati Sadhana. Firstly, I welcome Padma Shri Dr. Sudhir Shah. He is a distinguished figure in the field of neurology. Dr. Shah serves as the head of the Department of Neurology at NHL Municipal Medical College in Ahmedabad, India. He is a member of esteemed organizations such as the Neurological Society of India, Indian Academy of Neurology, and Association of Physicians of India. Dr. Shah's contributions extend beyond medical practice. He is known for his research on brain cells and has authored books on neurology and Jainism with over 50,000 copies sold, the earnings of which have been donated to charities. In recognition of his remarkable achievements, Dr. Sudhir V. Shah has been honored with the prestigious Padma Shri Award by the Government of India in 2016, a testament to his dedication to medical science and philanthropy. Please join me in welcoming Padma Shri Dr. Sudhir V. Shah, whose exemplary work in neurology and commitment to humanitarian causes inspire us all. I am delighted to introduce Mr. Umesh Gala sir, a highly respected chartered accountant with nearly 40 years of expertise. He has achieved top honors throughout his academic journey, ranking 9th all India in his final exams. Umesh ji specializes in complex tax matters, particularly within the pharmaceutical industry, offering invaluable guidance to large corporations. Aside from his professional achievements, Umesh sir generously shares his knowledge through presentations and publications. He has also been actively involved in the Mount Sadhana Shibers from its inception, serving as an organizer and dedicated participant. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Umesh Gala sir. We are honored to have him here with us today. Welcome, sir. Our third panelist today is Mr. Sudhir Patni sir. It is my distinct pleasure to welcome Sudhir sir from Matunga, Mumbai, who is a founder member of the Swanubhuti Foundation. He is one of the promoters of Patni Tours, company predominantly engaged in organizing Jain pilgrimage tours since 1967. Beyond his business ventures, Mr. Patni has actively contributed to numerous social and religious causes, serving as a committee member of the Mumbai Jain Ghogri Gyati and previously as a trustee of the Matunga Jain Sangh. Currently, Mr. Patni is deeply involved in promoting and organizing the highly sought after Mount Sadhana Shibis, reflecting his unwavering commitment to spiritual growth and community well being. Please join me in extending a warm welcome to Sudhir sir, whose dedication to Jainism and community welfare enriches us all. We are all honored here to have him with us on this special 205th episode of Jain Talks. Now I pass on the stage over to Sudhir Patni sir to present the subject. Thank you. नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैं जैन फाउंडेशन का बहुत ही आभारी हूँ। आज की 205वीं जैन टॉक में पद्मश्री डॉक्टर सुधीर भाई शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट उमेश भाई गाला और मुझे आमंत्रित करने के लिए, और जैन फाउंडेशन ने जो काम पिछले 4 साल में किया है उस बात की सराहना करते हुए मैं इतना ही बताऊंगा कि आज के इस गुजरते हुए दौर में काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी कर रही है।
उसमें किस तरह से आज का यूथ आगे बढ़ सके, उस बात को लेके जैन फाउंडेशन ने आज जो भी प्रयास किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा कि डिजिटल फास्टिंग, जो कि आज की सबसे बड़ी नीड ऑफ आवर जो है, वो डिजिटल फास्टिंग के लिए उन्होंने जो काम किया है, और पिछले पर्यूषण में जो 45 डेज का डिजिटल फास्टिंग करे, उनको बाय फ्लाइट यात्रा कराने ले जाना, इस तरह की बातें करके आज के यूथ को डिजिटल फास्टिंग का सही मायने में मतलब समझाया है। और ऐसे काफी काम ये 204 जो जैन टॉक हुए उसके दरमियान हुआ है। तो आज के विषय पे आते हुए मैं इतना कहूंगा कि सरस्वती साधना के लिए आज जो चारों तरफ कुछ अहोभाव है, कुछ प्रश्न है, मैं सीधे ही आज के हमारे बड़े ही विद्वान पद्मश्री डॉक्टर सुधीर भाई शाह की और आपको ले जाना चाहूंगा, जो मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाएंगे कि साधना क्या है, सरस्वती साधना क्या है, और आज का मेडिकल साइंस इस बात को किस तरह से मानता है, उस बात की पूरी जानकारी हमें डॉक्टर सुधीर भाई शाह से मिलेंगी। और टू डॉक्टर सुधीर भाई शाह। राइट, थैंक यू। हेलो, जय जिनेन्द्र, सबको प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी थैंकफुल टू जैन फाउंडेशन, स्पेसिफिकली रमेश भाई शाह, डॉक्टर प्रियदर्शनी जैन, and of course my friends Sudhir Bhai Patni and Gala Sahab. It is because of them that I am here with you to share my experience of Saraswati Sadhana and meditation. I hope I am audible. मैं सब लोग सुन सकते हैं मुझे? Yes. जी बिल्कुल। जैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरुदेव श्री जयचंद्र सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब की आज्ञा से अजीत चंद्र सागर ने जिस तरह से सरस्वती साधना के प्रयोग के माध्यम से और भी कुछ साधना के जरिए उन्होंने जो स्टेट अचीव किया है, वो वर्ल्ड के लिए एक बड़ा अनमोल खजाना है, भेंट है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, काफी दुनिया घुमा हूँ, काफी जगह में अमेरिका, लंदन, सब जगह स्टडी भी किया है, पर मैंने ऐसा कहीं लिविंग एग्जाम्पल देखा नहीं है, और न तो उनके बारे में कुछ ज्यादा लोगों को जानकारी है कि ऐसी भी साधना होती है जिसकी वजह से आप ब्रेन को इतना उजागर कर सकते हो। जैसे आपको समझा दूं कि ब्रेन की कैपेसिटी क्या है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन, और इसकी जो कनेक्शंस है वो 100 ट्रिलियन है। इतनी इसकी कनेक्टिविटी, साइनेप्सिस कहते हैं उसको। सेकंड के 16th चरण के अंदर 1/16 ऑफ ए सेकंड ब्रेन का एक विचार, एक इम्पल्स सारे शरीर में फैल जाता है। अब इसमें से 90-95% एरिया डॉर्मेंट रहते हैं, हम उसके यूज नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरह से मैं समझाऊं तो ब्रेन की कैपेसिटी ऐसी है कि 1000 पन्नों की एक बुक, ऐसी 90 मिलियन बुक्स ये ब्रेन स्टोर कर सकता है। इतना पावर ब्रेन के अंदर है। या तो 300 मिलियन टीवी आवर्स जितनी कैपेसिटी स्टोरेज की इसमें है, और मेमोरी की इसकी कैपेसिटी। पर हम छोटी छोटी बात में ये चाबी कहाँ रखी, ये क्या किया, कल कौन आया था, उसका नाम क्या है, ऐसा याद करने में उलझ जाते, because we have not tapped the potential and we don't know how to do this. और तरीके से बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर 50 ट्रिलियन, 5 के ऊपर 13 शून्य इतने सेल्स हैं। हर एक सेल में 1.4 माइक्रोवोल्ट करंट है। मतलब सारे शरीर की बात करूं तो 70 ट्रिलियन माइक्रोवोल्ट करंट का ये शक्ति पुंज है, और हम नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में सारी ऊर्जा को गंवा देते हैं। तो महाराज साहब ने जो काम किया है वो सभी साधनाओं को नजर में रखते हुए उन्होंने एक छोटा सा एक मॉडल दे दिया हमको, जिसमें 4 चरण बताए गए। उसमें सबसे पहले में
बच्चों के लिए खास बात करें, युवाओं के लिए बात करें, ऑफ कोर्स एडल्ट और प्रौढ़ लोग भी सब लोग कर सकते हैं, सबको बेनिफिट होता है, पर सबसे ज्यादा फायदा जो ब्रेन डेवलप हो रहा है बच्चों का, एडल्ट जो कॉलेज गोइंग तक के स्टूडेंट्स है उनकी, मे बी अप टू 30-35 ईयर्स, तो इन लोगों के अंदर पहले चरण में स्थिरता की बात आती है, स्थिरता ध्यान कह सकते हैं आप। तो मान लो 5 मिनट तक वो स्थिरता का ध्यान, जिससे चंचलता नष्ट होती है। उसका कारण ये है कि ऐसा करने से मन का जो वेवरिंग है, इधर से उधर घूमना, वो धीरे धीरे आंदोलन कम होते हुए एक जगह पे स्थिर होने लगता है। वो ध्यान की पूर्व भूमिका भी कह सकते हो, ध्यान का पहला चरण भी कह सकते हो। बाद में उन्होंने ऐसा सोचा कि एक टेंशन आ गया, स्थिरता आ गई, तो अभी उसको ध्यान की भूमिका में, कंसंट्रेशन में ले जाए, तो आलेखन की बात आती है। जो मंत्र का आलेखन है, हाथ से लिखो, आंख से ऊपर देखो, उसको कान से सुनो और उसके ऊपर मनन करो। सो ये सब तरीके से आपका फुल कंसंट्रेशन सभी इंद्रियों का उसके ऊपर आ जाए, तो आपके सभी और द्वार बंद हो जाते हैं और उसी के ऊपर आपका ध्यान रहता है। थर्ड जो चरण आता है उसमें मंत्र जाप करना है, और उसकी वजह से आपका कंटिन्यूअस, आप बोल के भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हो, जप अजप दोनों तरीके से। वो गुरुदेव की टेक्निक है, वो समझनी चाहिए बराबर से हमें। और बाद में चौथा जो चरण, जो सभी ज्ञान की जो देवी है, शुद्ध देवी सरस्वती माता की, उनकी ऊपर ध्यान की जो विधि है, उनका मंत्र, उनके बारे में जो कुछ भी गुरुदेव बताते हैं, वो विधि हमने पूरी फैमिली ने, चारों जन ने, मैं, मेरी वाइफ, मेरी दोनों डॉटर जो न्यूरोलॉजी से, दोनों ने ही करी और हमको बहुत फायदा हो। तब जाके मैंने गुरुदेव से कहा कि क्यों ना इसका बड़े पैमाने में कोशिश की जाए। हमें, मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले की बात है, जब गुरुदेव ने पहला प्रयोग किया था, 12 साल पहले, तब शतावधान का प्रयोग किया था, फिर 2 शतावधान का प्रयोग किया, फिर हमने सोचा कि स्कूल के बच्चों को कुछ न कुछ साधना सिखाई जाए। हालांकि मैं ये बात जरूर बता रहा हूँ कि गुरुदेव जो साधना करते हैं तो अति कठिन और बहुत ऊंची कक्षा की, उसमें मौन है, स्वाध्याय है, ग्रंथों का अध्ययन है, विनय है, व्यावृत्य है, बाह्य और अभ्यंतर, बार और तप की बात आती है, उसको गुरु, अपने गुरु के प्रति भक्ति की बात है, देव के प्रति श्रद्धा की बात है, और जो उग्र ध्यान की विधि जो करते हैं, उसके जो उनका लेवल है, तो अभी 500 अवधान तो थोड़े साल पहले किए, और अभी तो 1000 अवधान करने जा रहे हैं। पर क्यों ना हम लोग जो हार्डली 5 चीज रख सकते हैं दिमाग में, उसके बदले 15-25 चीज, 50 चीज तक पहुंच जाए, और साथ में पूरी एकाग्रता से जो भी हम श्रवण करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो पूरा दिमाग में स्थित कर सके। तो हमने, और गुरुदेव की आज्ञा से, स्कूल के बच्चों का, कापड़िया साहब जो है, मुक्ता कापड़िया, उनकी स्कूल के बच्चों के ऊपर और दूसरे भी कुछ स्कूल के बच्चों के प्रयोग किया था। मैं बहुत साइंटिफिक डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मात्र 3 महीना तक जो बच्चों ने रोज 30 मिनट साधना की इस प्रकार से, उनमें हमने कंप्लीट रिसर्च बेस से प्रोटोकॉल बनाया था। उससे हमें जानना मिला कि उनका अटेंशन इम्प्रूव हुआ था, उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ था, उनकी वर्बल मेमोरी इम्प्रूव हुई थी, उनकी बिहेवियर में फायदा हुआ था, उनकी चित्त की चंचलता कम हुई थी, घर के साथ, सभ्यों के साथ बर्ताव में, स्कूल के अन्य बच्चों के और शिक्षक के साथ की उनकी जो वर्तणूक थी, उन सब में जिसको हम कह सकते हैं कि नोद पात्र, जैसे हम कह सकते हैं कि यस विथ कॉन्फिडेंस,
कि जो कंट्रोल ग्रुप था उसके मुताबिक उनके कंपैरिजन में इनका काफी हमें फर्क लगा। हालांकि खाली 3 महीने का प्रयोग था, मात्र 30 मिनट का पूरा रोज का था, और उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी या एग्जीक्यूटिव फंक्शन वगैरह में कंट्रोल से ज्यादा फायदा नहीं पा सके, क्योंकि 3 महीने का था, छोटे ग्रुप था। पर मैं मानता हूँ कि अगर बच्चे ये रोज 6 महीना 12 महीना करें, और हम ये रिसर्च भी करना चाहते हैं गुरुदेव की आज्ञा से, कि 12 महीने तक ये करने से लॉन्ग टर्म मेमोरी और प्रज्ञा में क्या क्या फर्क करता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमने जो मेडिटेशन के प्रयोग और किए हैं उसमें 6-7 चीज बहुत अच्छी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे अलग अलग जो मेडिटेशन सिस्टम है, जिसमें साउंड मेडिटेशन है, आनापान सदी जैसी सांस का मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, ज़ेन मेडिटेशन है, सहज मेडिटेशन है, विपासना ओपन मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं जिसको, कंपैशन मेडिटेशन है। इस तरह के अंदर 3-4-5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने स्पेक्ट एफएमआरआई पैट के प्रयोग में देखा कि जो रोज मेडिटेशन कोई भी ये प्रक्रिया से करता रहता है 6-12 महीना तक, रोज 30 मिनट से 60 मिनट तक, उसके फ्रंटल जो सिस्टम ब्रेन की जो ये लोब है जिसके अंदर हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, हमारी जजमेंट की कैपेसिटी, निर्णय शक्ति, कोई प्लानिंग करना है उसको एग्जीक्यूट करना है, भाषा, कम्युनिकेशन की सिस्टम, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसी बहुत सी जो शक्तियां है जो हमारे पूर्वज, इमीडिएट पूर्वज वानरों में नहीं है, वो मनुष्य में जो है, वो प्रज्ञा के सारे लक्षण जो मैंने बताए और भी कुछ है, वो सारे मेडिटेटर जो लोग हैं उसके अंदर 30% तक इम्प्रूव हो जाते हैं। जो आदमी 6-12 महीना रेगुलर डेली मेडिटेशन या साधना ऐसी करता है और साथ में थोड़े यम नियम विनय विवेक वैराग्य वगैरह करता है, उसको बहुत फायदा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण संज्ञा ये है कि उसका लेफ्ट पेराइटल जो एस्पेक्ट है ब्रेन का, उसके अंदर ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। जो मेडिटेशन करता है, इस प्रकार से साधना करता है, साधना के अंग हमने बताए, तो उनका मन का जो प्रवाह है, वृत्ति का, विचार का, विकार का, इच्छाओं, अगणित इच्छाओं जो हमको होती है, एम्बिशंस होती है, और हमारा मन जो पूर्व भूतकाल और भविष्य के बीच में घूमता रहता है, वो सभी में से मेडिटेशन हमें बाहर निकालता है। हमारी जैन परिभाषा में अगर बात करूं तो जो हमारे राग और द्वेष और उसके पीछे जो मोह का साम्राज्य है, वो धीरे धीरे कम होते हैं। तो इसलिए हमारी इच्छा आकांक्षा कम हो जाती है, लोभ और मोह कम हो जाता है, द्वेष कम होता है तो क्रोध और मान अभिमान कम हो जाता है, लोभ और माया कम हो जाती है। तो ये पूरा जो धर्मों ने और हमारे जैन धर्म वगैरह सारे ओरिएंटल धर्मों के अंदर मेडिटेशन का महत्व बताया था, उस टाइम साइंस ये सब नहीं जानता था। अब हमने स्पेक्ट के मशीन में, एफएमआरआई में, पैट में और मैग्नेटोएन्सेफलोग्राम मशीन में सब चीजें देखे, तो हमें लगा कि मेडिटेशन इज द रियल थिंग। सारे जैन धर्म का मूल सूर क्या है, समयम गोयमा माँ पमाइए, एक क्षण का भी प्रमाद न करते हुए एक एक क्षण में जागृत रहना, वो मेडिटेशन का पहला चरण है। और संपूर्ण एकाग्रता से सारे विचार विकार को सावधानी से दूर रख के मात्र आत्मा का चिंतन करना, वो स्टेट तक पहुंचने के लिए ये सारी साधना का रास्ता भगवान महावीर ने बताया। और मैं मानता हूँ कि सारे धर्मों में अगर योग शास्त्र लो तो भी उसमें अल्टीमेटली बात तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा
ध्यान और समाधि तक ही जाती है। मतलब सारी चीजों का अंतिम पार्ट ध्यान और समाधि है, और साधना का हेतु भी यही है। मेरा ये कहना है कि गुरुदेव ने ऐसी छोटी एक 30 मिनट की, एक 25 मिनट की वैसे तो साधना पद्धति बताई, जो कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है, और हमने बच्चों पे किया, उनका बिहेवियर का एनालिसिस किया तो उसमें भी हमें फायदा मिला, अटेंशन कंसंट्रेशन में मिला, उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शन वगैरह जो उनकी जो दैनिक प्रक्रिया है उसमें हमने देखा। और ये बच्चे सरल और विनयी होते हुए मालूम पड़े खाली 3 महीने में। फिर कुछ बच्चों ने अपने और से साधना चालू रखी, उनमें से 2-3 मुझे मिले थे बीच में। तो उनके माँ बाप ने बताया कि साहब ये लोग तो काफी सुधर गए हैं, मैं मान ही सकता हूँ कि मेरा इतना चपल चंचल लड़का इतना शांत स्वस्थ और विनयी हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरस्वती साधना बच्चों को तो जरूर सिखानी चाहिए, हम जैसे एडल्ट और प्रौढ़ लोगों को भी करनी चाहिए, बुढ़ों लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली धर्म के अंतिम चरण की बात है, और गुरुदेव ने एक छोटी कैप्सूल बना के हमारे लिए दी है, तो मैं मानता हूँ कि वो करनी चाहिए। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मेडिटेशन के जितने प्रयोग विश्व में हुए उसमें एंड्रयू न्यूबर्ग नाम का जो आदमी है, जिसको मैं मिला था मेरे स्पिरिट फास्टिंग के प्रयोग जो मैं करता था हीरारतन माणिक फिर प्रहलाद जानी वगैरह पे, और जसमीन वगैरह इंटरनेशनल लोगों पे मैंने किया, तो मुझे उन्हें मिलना हुआ। तो मुझे ये पता चला कि ये जो उन्होंने स्टडी किया उसके पहले वो मानते थे कि ये सब साधना योग और ध्यान ये सब हेलुसिनेशन है, मानसिक भ्रमणा है। पर वो खुद ने जब ये सारे प्रयोग किए और उसमें एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस होते गए, तब उन्होंने बुक लिखी कि भाई गॉड्स विल नॉट गो अवे, और मेडिटेशन का कितना प्रोफाउंड प्रभाव है। तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद में इतने सारे प्रयोग हुए, 2002 के ये प्रयोग के बाद ये 22 साल में मेडिटेशन के बहुत पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन हुए हैं। उसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, सहज मेडिटेशन से लेके विपश्यना माइंडफुलनेस पे तो मैक्सिमम हुए हैं। तो हमें भी ऐसे रिसर्च में जुड़ना चाहिए। और बम्बई में मेरे दोस्त डॉक्टर परेश दोषी ने भी ऐसा प्रयोग किया था स्कूल के बच्चों में, और उनका भी रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच हुआ था ऑलमोस्ट। उनका भी पब्लिकेशन बीच में हमारी एक कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और और जो लास्ट पेपर्स आए उसमें तो ये बताते हैं कि जो मेडिटेशन करता है उनको अल्जाइमर पार्किंसन नहीं होता है। उसका कारण भी बताया गया कि मृत्यु के बाद इन लोगों की ऑटोप्सी की गई जो मेडिटेशन लंबे अरसे तक करते थे, तो उनका प्री फ्रंटल जब मैं लोब बताया उसकी थिकनेस और टेम्पोरल लोब की थिकनेस काफी बड़ी आई। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दैट ऑफसेट्स द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। सो ब्रेन के कुछ एरिया खूब पावरफुल हो जाते हैं, सेल्स का विकास होता है, उनकी ग्रोथ होती है, मेमोरी का जो हिपोकैम्पल एरिया है वो भी बढ़ता है, और जो फियर का एरिया है एमाइगडाला उसका उसकी संवेदना कम हो जाती है। तो मेडिटेटर बिल्कुल निर्भय हो जाता है, उसकी विवेक शक्ति इतनी बड़ी होती है, और जो बोलता है उसमें इतना शांति और ताकत आ जाता है, वो अल्टीमेटली ऐसी इस परिस्थिति में पहुंच सकता है कि उनका प्रभाव सारे आजू बाजू में जितने लोग हैं उनके ऊपर पहुंच जाता है। तो ये सभी कारण से मैं आपको 2 चीज कहना चाहता हूँ मेरे वाणी को विराम देते पहले, कि गुरुदेव का ये जो 1000 अवधान का प्रयोग आ रहा है अजीत चंद्र सागर का, वो आप जरूर देखें, या तो पर्सनली या तो टीवी पे। और दूसरा कि सरस्वती साधना के जो प्रोजेक्ट अगर रखे जाए आपके सामने, तो अबाल वृद्ध सबको उसमें पार्ट लेना चाहिए। और हम सबकी फर्ज ये बनती है कि विचार सारे इंडिया में और विश्व में फैलाए, सभी लोगों को ये साधना सिखाए, और सभी का
आत्मा का कल्याण हो, वहां तक की भूमिका में पहुंच जाए, वो मंगल भावना के साथ सबको प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। जी नमस्ते। हमने देखा कि डॉक्टर सुधीर भाई शाह साधना और ध्यान के ऊपर एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह उन्होंने जितनी बातें करी, हमें लगता था कि अगर ये 45 मिनट्स की जगह पे पूरे दिन का भी अगर सेमिनार हो तो इस गागर में से बहुत ही बड़ा सागर निकल सकता है। मैं रमेश जी से गुजारिश करूंगा कि इस चीज को हम आगे भी इसमें और डेप्थ में जाना चाहेंगे। अभी जो उन्होंने बात करी स्टूडेंट्स की, उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़की जिन्होंने जो यहाँ पे पढ़ते हुए सरस्वती साधना करने के बाद सीए और सीपीए तक जो पहुंचे, आज वो मेलबोर्न में बैठी है। वो हमारी छात्रा क्या कहती है, उनकी बात एक 2 मिनट के लिए सुनने के बाद आगे हम चलते हैं श्री उमेश भाई गाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट उमेश गाला से इस सरस्वती साधना के कोर्स के बारे में। सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन जो है SSRF, उसके जरिए आज तक सरस्वती साधना जो 50,000 स्टूडेंटों के ऊपर जिसका प्रयोग हुआ है, उस साधना के बारे में हमें उमेश जी बताएंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं जानवी पटेल। पिताजी। सर, क्या मैं एक बार गुरुदेव महाराज साहब के ये को चला सकती हूँ? बिकॉज समहाउ जानवी पटेल जी का वो चल नहीं रहा है। महाराज साहब कोई का बात नहीं, वीडियो। कोई हाँ, बात नहीं। हम जो अभी हमें डॉक्टर सुधीर भाई ने जो चीज बताई है, तो आइए हम देखते हैं ये 1,000 अवदान की बात जो अभी उन्होंने की थी वो क्या है, और उसमें क्या हम देखने जा रहे हैं 1 मई को। उसके बारे में एक छोटी सी क्लिप देख के फिर हम उमेश जी से बात करें। जो पिछले 650 सालों से कोई नहीं कर सका और शायद आने वाले 1000 सालों तक ना हो पाए, वैसा दर्शकों द्वारा ऑन द स्पॉट पूछे गए 1000 सवालों को एक साथ याद रखने का अद्भुत पराक्रम, मतलब सहस्त्रावधान, जो अब होने जा रहा है। साइंस ने आज तक कई अशक्य लग रही चीजों को सफल बनाया है। ठीक वैसे ही अपनी अथाग मेहनत और सरस्वती माता की उत्कृष्ट साधना से पूज्य आचार्य श्री नय चंद्र सागर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न पूज्य गणिवर्य श्री अजित चंद्र सागर जी महाराज साहेब सहस्त्रावधान जैसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने जा रहे हैं। 1 मई 2024 NSCI डोम वोरली मुंबई में ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय पलों का साक्षी बनने का लाभ हम सबको मिलेगा। ऐसा मौका वंस इन अ लाइफ टाइम है। इसमें हमें व्यवस्था में सहयोग मिले, इसलिए पास सिस्टम रखी गई है, जिसकी जानकारी बहुत जल्द हम देंगे। पूरी दुनिया में जिन शासन का डंका बजाने वाले इस इवेंट को बिल्कुल मत चूकिएगा। जय जिन शासन, जय महावीर जी। तो इस कार्यक्रम के लिए अभी ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में 1 मई के लिए जो हमें जानकारी है उसकी लिंक इसमें दी जाएगी 1000avdan.com पे। वहाँ पे जाके आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। अब हम ये सरस्वती साधना के कोर्स के बारे में सुनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उमेश भाई गाला से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि इन द करंट कंटेक्स्ट हमको पता है कि एजुकेशन सबसे बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट, व्यक्ति के विकास के लिए एजुकेशन बहुत मायने रखता है। और आज की तारीख में lakhs of crores of rupees are being spent for education. स्टूडेंट्स अपने जीवन के कई घंटे ये एजुकेशन के लिए, नॉलेज को प्राप्त करने के लिए वो स्पेंड करते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जो भी बाहर से हमको नॉलेज मिल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में कोई डिस्कशन, कोई साइंटिफिक अभिगम हमारे पास नहीं है। अगर मैं मेरी पाचन शक्ति के संदर्भ में ये बात कहूँ कि कितना भी खाना मैं अगर खाता हूँ, लेकिन उसको पचाने की शक्ति अगर मेरे में पर्याप्त नहीं है, तो खाया हुआ खाना
मेरे को ना बचेगा, और उसकी वजह से जो मेरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो लगभग इसी तरह का संदर्भ आज के एजुकेशन सेक्टर में हम देख सकते हैं कि बाहर से तो हजारों घंटों का अभ्यास स्टूडेंट्स करते हैं, क्लासेस, एजुकेशन मटेरियल, कोर्सेज, लेकिन उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में कोई हमारे पास साइंटिफिक अभिगम नहीं है। तो ये सरस्वती साधना वो आपका इनर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, दिस इज द टेक्निक फॉर डूइंग दैट। एक बार आपकी इनर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी तो वो इनर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका नॉलेज ग्रहण करने का कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी आईक्यू बढ़ेगी, और ये नॉलेज यू विल बी इफेक्टिवली एबल टू रिटेन विथ योर सेल्फ। गुरुदेव का जो ये सोचना है कि जो आज का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है एजुकेशन का, दैट इज द एंट्री पॉइंट फॉर टेकिंग स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेवल एंड एक्सपोजिंग देम टू द रिच इंडियन हेरिटेज। जो भारत की संस्कृति का जो सुवर्ण जो आयाम है उसको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट में दो गुरुदेव के सोच हैं कि एक तो यू स्टार्ट विद किड्स, बच्चों से शुरुआत की जाए, और बच्चों को जो उनका आज की तारीख में सबसे उनका जटिल प्रश्न है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन अगर उनके लिए इजी एफर्टलेस हो जाएगा, और ये सरस्वती साधना का जो सुधीर डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सुधीर शाह ने जो हमको समझाया, उसके बहुत सारे फायदे हैं। ये साधना करते करते उसका उनका बच्चों का नॉलेज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो बढ़ती ही है, लेकिन सरस्वती माता से सन्मुख होने से, जो सरस्वती माता का ध्यान बच्चे करते हैं, उसकी वजह से उनके मॉरल कंडक्ट में भी बहुत फर्क आता है। आस्ते आस्ते उनमें संस्कार का सिंचन भी होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स का अगर एक सोल्यूशन है तो ये सरस्वती साधना एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। एक बार अगर जो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे हमारे नज़र समक्ष आए हैं कि जिसमें जिनको 1 घंटा स्टडी करने के लिए बाद भी नॉलेज रिटेन करने के लिए जिनको तकलीफ होती थी, वो 10 मिनट में 15 मिनट में उतना ही अभ्यास वो कर पाते हैं। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स कि जो सीए में पास नहीं हो पाते थे, वो सरस्वती साधना करते करते वो सीए एकदम इजीली पास हो गए। कई लोगों ने आईएएस आईपीएस की एग्जाम्स भी क्लियर की। अल्टीमेटली साधना आप जितनी सिंसेरिटी से करेंगे उतना आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन ये जो साधना में जो 3-4 आयाम गुरुदेव ने इसको असेंबल किए हैं, ये जो जैसे डॉक्टर सुधीर शाह ने बताया, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योर आईक्यू डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट, ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करते हैं। और इसका आज की तारीख में तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स पर सरस्वती साधना का प्रयोग करवाया गया है, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिला है। जिन्होंने भी ये साधना की है उनको बहुत बहुत फायदा मिला है। डॉक्टर सुधीर शाह ने ये जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी, तो बम्बई में आज से लगभग 8-9 साल पहले पूरी न्यूरोलॉजिस्ट की एक टीम के अंडर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें 100 स्टूडेंट्स, 50 कंट्रोल ग्रुप था, 50 को साधना न दी गई। और ये 36 दिन की साधना जिन स्टूडेंट्स को कंट्रोल ग्रुप को दी गई, उनको साधना के पहले और साधना के बाद उनका सब ब्रेन के स्कैन्स वगैरह किए गए, और उसके बाद ये पता चला कि उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर में, उनके कंसंट्रेशन में, उनके नॉलेज के रिटेंशन पावर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सरस्वती साधना मात्र 30 मिनट्स की साधना है। 36 दिन आप अगर रेगुलरली ये साधना करते हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट टेस्ट एक स्टूडेंट को मिलेगा। बाद में अगर उसको थोड़ा टेस्ट मिलता है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये साधना लंबे टाइम तक उन्होंने की है, और जिन्होंने भी ये साधना लंबे टाइम तक की है उनको उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और उनकी एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही फायदे का रहा हुआ है।
उमेश भाई ने जो बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए शिला जी, क्या वो वीडियो हम रन कर पा रहे हैं जानवी पटेल का? Hi, my name is Janvi. I have completed my CA and CPA. Saraswati Sadhana was introduced to me by Nilesh Uncle, and I finished the 36-day cycle, and it really helped me in completing my CA and CPA. It improved focus and it helped me remember or understand concept and as well as retain them in a very short period of time. Thank you. जी, तो ये इसी तरह के एक्सपीरियंस काफी बच्चों के शेयर हुए हैं, लेकिन अभी क्योंकि समय की पाबंदी है, हम आज हमेशा ऐसा होता है कि कभी टॉक शो को कंक्लूड किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ बजाय इसको कंक्लूड करने, हमने ये अभी तक जितनी भी ज्ञान की बातें की हैं, सा विद्या या विमुक्ति है, ये अपनी जो बात है कि ज्ञान वही है जो हमें मुक्ति दिलाए, उस चीज को ख्याल में रखते हुए मुक्ति यानी कि केवल ज्ञान जो जरूरी है मुक्ति के लिए, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का बीज होना जरूरी है, और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान विज्ञान के द्वारा मिल सकता है। इस डेप्थ में जाने के लिए मैं जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश जी से कहूँगा कि भविष्य में ऐसे ही कोई एक टॉक शो पे विद्वान वक्ताओं के द्वारा इस विषय को भी हम काफी डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। आज आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा याद करा देते हैं कि फर्स्ट में, और जो आज सरस्वती साधना की बात को लेके उत्सुक होकर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक सरप्राइज है कि 1 मई को आप जुड़िएगा। इस सरस्वती साधना के कोर्स में आगे क्या और कैसे क्या होने जा रहा है, वो 1 मई को लॉन्च होने जा रहा है। जरूर से हमारे साथ 10 अध्यान यानी 1000 अध्यान के इस कार्यक्रम में जुड़िएगा। ओवर टू रमेश भाई, जैन फाउंडेशन। Thank you, sir. Before I asked invite Ramesh sir to come over, मैं आपकी अनुमति से कुछ प्रश्न लेना चाहूंगी दर्शकों से, क्योंकि हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, YouTube पे भी आ रहे हैं और यहाँ पे भी होंगे ही। तो अगर हम 5 मिनट हमारे दर्शकों को दें और हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऑलराइट। सो यस, सो दर्शकों से निवेदन है, जिनके पास भी जो भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और यस, तो हर्षित मुनि जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना प्रश्न लें। मेरा प्रश्न यह है कि सरस्वती साधना हम किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार सीख सकते हैं, किस प्रकार से होती है, तो एक बार आप वापस से डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, उमेश जी। हाँ, तो जैसे डॉक्टर सुधीर शाह ने बताया कि सरस्वती साधना में टोटल 4 चरण हैं। सबसे पहले जो सरस्वती माता का जो बीज मंत्र है ओम ऐं नमः, तो उसकी एक जो हम लोग बचपन में हम जो करते हैं कि ऑलरेडी वर्डेड है, जिसमें ओम ऐं नमः का 108 बार एक पन्ने का उसमें लिखा हुआ है। वो एक ओम ऐं नमः का आपको मंत्र बोलना भी है, मंत्र सुनना भी है और मंत्र लिखना भी है। तो इस तरह से जैसे डॉक्टर सुधीर शाह ने बताया कि 3 या 4 इंद्रिय अगर आपकी इस मंत्र लिखने में, याद करने में, सुनने में और बोलने में अगर आपकी इन्वॉल्व होगी, तो हमारा जो एनर्जी का लीकेज पॉइंट है वो इंद्रियों से ही, हमारे सेंसेस है, वो सेंसेस से हमारी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ लीक होती है। तो इसका जो पहला चरण है उसमें ये मंत्र आलेखन से जो एनर्जी हमारी बाहर की तरफ लीक हो रही है उसको कंसंट्रेट करके उसको इनवर्ड अंदर डाइवर्ट करने का काम है। टोटल 30 मिनट्स का ये सरस्वती साधना का कोर्स है, गुरुदेव ने बनाया। वो इसी तरह इसी वजह से बनाया गया है कि इससे ज़्यादा समय लोगों को शायद साधना में जुड़ने के लिए डिफिकल्ट हो। 36 दिन का जो सरस्वती साधना का जो कोर्स है उसमें पहले दिन 1-1.5 घंटे का गुरुदेव का इंट्रोडक्शन और उनकी स्पीच वगैरह है, जिसमें पूरा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद मात्र हाफ एन आवर
कि रोज साधना करने से, 36 दिन की साधना करने से आपको अपने आप में थोड़े थोड़े चेंजेस महसूस होंगे। उसके बाद का सेकंड स्टेप है ध्यान का। तीसरा स्टेप है भाष्य जाप का। इसमें थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी इन्वॉल्व किया गया है। और लास्ट में जो है कि सरस्वती माता को इन्वोक करना, मतलब सरस्वती माता के प्रत्यय हमारा समर्पण, जो गॉडेस ऑफ नॉलेज है उनके प्रत्यय हमारा समर्पण, और उनको आह्वान करके सरस्वती माता को हमारे अंदर स्थित करना। इस तरह से टोटल 4 चरण सरस्वती साधना में गुरुदेव ने सेट किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि परम पूज्य गणिवर्य अजीत चंद्र महाराज साहब, मे बी ही इज अ जीनियस, कि जिन्होंने 100, 200, 500 अवदान किए हैं और अब 1000 अवदान की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कोई एक्सीडेंटल या इंडिविजुअल जीनियस की बात नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवान नयचंद्र महाराज साहब के अंदर उनकी जो जो शिष्यों की प्रणाली है, उसमें आज की तारीख में 10 ऐसे मुनि भगवंत हैं जिनकी उम्र करीब 20-25 से भी कम है। लेकिन ऐसे 10 मुनि भगवंतों ने शतावधान का जाहिर में प्रयोग ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें कई मुनियों ने 200 अवधान भी किए हैं, कई मुनियों ने इंग्लिश में भी अवधान किए हैं। तो गुरुदेव ये सरस्वती साधना, आगम अभ्यास और हमारा ध्यान मेडिटेशन के द्वारा पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल जीनियस का बात नहीं है। अगर साधना कोई भी करेगा तो उसके अंदर इतनी नॉलेज को ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता का विकास होगा। आज की तारीख में ये मैसेज कन्वे करना इतना ही जरूरी है कि अगर हमको हमारे गोल्डन ट्रेडिशन जो हमारा था उसकी तरफ अगर हमको दरवाजे खोलने हैं, तो सरस्वती साधना इज द एंट्री पॉइंट फॉर टेकिंग अस टू द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ आवर पास्ट सिविलाइजेशन। मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपने जो बीज मंत्र का बताया था, तो ओम नमः ऐसे ही लिखना है या फिर और कोई ऑप्शंस हैं? ओम नमः नहीं है, ओम ऐम नमः। ओम ओम ह्रीम नमः है। ऐम ऐम ओम ऐम नमः, ये सरस्वती माता का बीज मंत्र है। और एक छोटी बात ये भी कहना चाहूंगा कि सरस्वती माता मात्र जैनों नहीं, बट द एंटायर ईस्टर्न कल्चर, मतलब पूरा हिंदुइज्म में भी एज अ गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती माता ये सबको स्वीकार्य है। और इनके सरस्वती माता के ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये एक छोटा मंत्र है कि जो बीज मंत्र है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, ये एज से संबंधित है कि क्या ये जो सरस्वती साधना है, ये पढ़ने लिखने वालों के लिए ही उपयोगी है या सब एज वर्ग जो हैं उनके लिए उपयोगी रहेंगी? You want to answer this question, Dr. Sudhir Shah? यस। जो ओम ऐम नमः, उसमें ऐम के ऊपर डबल मात्रा है, ध्यान रहे। वो सरस्वती माता का बीज मंत्र। हर एक माता जी का एक, किसी का रीम है, किसी का क्लीम है, जैसे लक्ष्मी माता का श्रीम है, ऐसा सरस्वती माता का ऐम है। अब खाली बात क्या आती है, लिखना आना चाहिए। मतलब इतना पढ़ाई हो कि जैसे आप मंत्र लिख सको, तो यू आर क्वालिफाइड टू बिकम पार्टिसिपेंट और यू कैन डू दिस साधना डेली। क्योंकि बाकी की बात तो मन के साथ का खेल की है, इंद्रियों की बात है। पर एक बात जो आती है, पढ़ाई की जरूरत खाली इतने अक्षर लिखने की बात है। ओम ऐम नमः, ऐम बोलते हो, जीभ के ऊपर टच होता है, ऐम नमः। सो दैट इज व्हाट हाउ यू टू स्पीक। जो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लिखना, दो चीजें जरूरी होती। इतनी पढ़ाई हो तो बहुत हो गया। और इसके लिए और कोई दूसरी रिक्वायरमेंट, लायकात की जरूरत नहीं है। लायकात ये है कि आप अपनी श्रद्धा से और पूरे मन से, लगाव से काम करो। तो जैसे मैंने बोला, मेरी दोनों बेटियां न्यूरोलॉजिस्ट हो गई। हम लोगों ने तो 2012 में किया था।
सो दिस इज रियली टाइम टेस्टेड, हमारे खुद के अनुभव की बात है, सारे विद्यार्थियों की भी हमारी परीक्षण की बात है, बम्बई में भी ये हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि सब लोग ये कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर से ये आपने पूरे जिस्ट में और जैनिज्म को हमारी जो परिभाषा बताती है, जो हमारे जो आगमों में लिखा हुआ है कि क्या महत्व होता है, आप उसको इंक्लूड करके आपने बहुत ही सुंदर से इसका सवाल का आंसर दिया आप तीनों ने। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी और अभी के लिए हम इस सेशन को यहाँ पे समाप्त देंगे आपकी सभी आज्ञा के साथ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।